की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसका बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। बस हालेलुया। हालेलुया। இங்க இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு சொல்கிறார், परमेश्वर अपने चेलों से कहता है, தரித்திரராகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள். जो आप दरिद्र है आप धन्य हैं। இந்த உலகத்தில் தரித்திரர்களை பார்த்தால் ஜனங்கள் மிகவும் அசட்டை செய்வார்கள். इस संसार में दरिद्र लोगों को देखने से संसार तुच्छ जानता है। அதாவது ஏழை ஜனங்களை பார்த்தால் மிகவும் அவர்கள் கேவலமாக நினைப்பார்கள். गरीबों को देखने से बहुत ही हम तुच्छ लोग देखते हैं। அவரிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? उनके पास क्या है? ஒன்றுமில்லை. कुछ भी नहीं है। அவருடைய வருமானம் என்றும் சொல்லிக்கொள்ற அளவுக்கு ஒன்றுமில்லை. उनका जो धन है वो बोलने जैसा कुछ खास नहीं है। அவன் ஒரு கூலி வேலை செய்கிறான். वो एक मजदूर का काम करता है। சொந்தமா ஒரு வீடும் இல்லை. खुद का एक मकान भी नहीं है। ஒன்றும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. कुछ बोलने जैसा कुछ नहीं है उसके पास। என்று ஜனங்கள் ஏழையை பார்த்து மிகவும் கேவலமாக நினைப்பார்கள். तो लोग जो है ऐसे गरीब को देखकर बहुत तुच्छ जानते हैं। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இங்கே என்ன சொல்கிறார்? लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? दरिद्रराகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று जो சொல்கிறார். आप दरिद्र है आप जो धन्य है करके प्रभु कहते हैं। ஏழைகளாகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்கிறார். गरीब है और आप धन्य है करके। பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று जो சொல்கிறார். भूखे और प्यासे हैं वो धन्य है करके। நேராக உலகம் சொல்வதற்கும் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றதுக்கும் நேராக அது ஆப்போசிட், அதற்கு எதிராக இருக்கிறது. संसार की बातें और यीशु मसीह बोलने की बातें टोटली एक से दूसरे सब पूरा इतना फर्क है। உலகத்தில் ஏழைகளை பார்த்தால் யாருக்கும் பிடிக்காது. संसार में कंगाल लोगों को कोई भी पसंद नहीं है। லாக்டவுன் ஆகிய அநேக ஜனங்கள் பாம்பேயிலிருந்தும் வேறு வேறு பட்டணங்கள் டெல்லியிலிருந்தும் புறப்பட்டு அவர்களுடைய ஊருக்கு நடந்தே போனார்கள். लॉकडाउन होने के बाद सब लोग अपने अपने शहर से अपने गांव की ओर चल के ही चले गए। ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் அவர்கள் நடந்து அவர்கள் காலெல்லாம் அது கொப்பளமாகிவிட்டது. 1000 किलोमीटर चल के उनका पाँव में सब छाले पड़ गए। அவர்களுக்கு சாப்பிட சாப்பாடு இல்லை, பிஸ்கட் பேக்கெட் மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த குழந்தைகளை கூட தூக்கி கொண்டு அவருடைய உடைமைகள் சாமான்கள்லாம் தலைமையில் வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் ரோடு வாயிலாக ரயில்வே ட்ராக் வாயிலாக அப்படியாக நடந்து போனார்கள். वो रोड से खाना भी नहीं, बिस्किट को खाते हुए अपने बच्चों को लेकर सामान को सर पे रखते हुए रोड में चल के जा रहे थे। எல்லாம் மீடியாக்காரெல்லாம் அவர்களுக்கு போட்டோ பிடிப்பது, வாட்ஸ்அப்பில் போடுவது, நியூஸ் சேனல்லாம் அவர்களை போட்டோ பிடிப்பது, அவர்களுக்கு இந்த மீடியாவில் போடுவது, அதை தான் செய்து கொண்டிருந்தார். सारे न्यूज़ चैनल उनको वीडियो पकड़ना, फोटो पकड़ना, व्हाट्सएप में डालना, न्यूज़ चैनल में डालना, यही काम कर रहे थे। ஆனால் அந்த ஜனங்களை பற்றி வருத்தப்படுவதற்கு யாரும் இல்லை. लेकिन उन लोगों के बारे में तरस खाने के लिए कोई भी नहीं है। உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை. मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। இருக்கிறவர்கள் உதவி செய்யவில்லை. जिसके पास धन था उन्होंने भी मदद नहीं किया। இல்லாதவர்கள் தான் ஏதாவது அவர்களுக்கு கொண்டு போய் வழியில் ஏதோ தண்ணியோ ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஏதோ ஒரு பிரெட்டோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து அவர்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்தார். जिसके पास कुछ नहीं था उन्होंने दूसरे लोगों को, साधारण लोगों ने उनको मदद किया। ஆனால் இந்த உலகம் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள், ஆனால் யாரும் எதுவுமே செய்யவில்லை. ये पूरा संसार उनको देख रहा था लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं किया। ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஏழைகளை பார்த்து சொல்கிறார், लेकिन यीशु मसीह गरीबों को देख के कहता है நீங்கள் பாக்கியவான், कि आप धन्य हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து ஏழைகளை பார்த்து சொல்கிறார். आप धन्य है करके यीशु मसीह गरीब लोगों को देख के कहता है। அவர் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஏழையாக இந்த பூமியில் அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். क्योंकि परमेश्वर ने एक कंगाल मनुष्य के समान अपना जीवन बिता के दिखाया। அவர் ராஜாதி ராஜாவாக இருந்தார். वो राजाओं का राजा था, கர்த்தாதி கர்த்தராக இருந்தார். प्रभुओं का प्रभु था। ஆனால் அவர் சரீரத்தில்
இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது लेकिन जब वो शरीर में धरती में आए, ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தார். एक कंगाल परिवार में जन्म लिए, ஒரு கார்பெண்டர் குடும்பத்தில். एक लकड़ी का काम करने वाले एक घर पे उसने जन्म लिया। அவர் அவருடைய வீட்டிலும் பிறக்கவில்லை. वो अपने घर पे भी नहीं जन्म लिए। அவர்கள் ஒரு யாத்திரை போகும்பொழுது அந்த வழியில் ஒரு சத்திரத்தில் அவர் மாட்டு தொழுவத்தில் அவர் பிறந்தார். एक यात्रा करते समय एक भेड़ बकरी के स्थान में, उसके रहने के स्थान में, वहां पे उनका जन्म हुआ। அது ராஜா வீட்டு பிள்ளை என்றால் எங்க பிறக்க வேண்டும்? एक राजा के घर का बच्चा जब संतान जन्मता है तो किधर जन्मता है? ஒரு பெரிய அரண்மனையில் பெரிய ஒரு பேலஸில் பிறக்க एक வேண்டும். बहुत बड़ा महल में जन्म लेता है। இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜா தானே? यीशु मसीह राजा का राजा तो है, அவர் பிரபுவுக்கெல்லாம் பிரபு தானே? हर एक प्रभुओं का प्रभु तो है, இதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. इस बात का कोई संदेह नहीं है। அப்படிப்பட்ட சர்வ சிருஷ்டிக்கும் அதிகாரி, சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சிருஷ்டிகர்த்தா, उस प्रकार का सारे सृष्टि का जो मालिक है, அவர் பிறந்த இடம் எப்படிப்பட்டது? वो जन्म लिया वो स्थान कैसा था? அவர் சொந்த வீட்டிலும் பிறக்கவில்லை. अपने खुद के जगह पर मकान में भी उन्होंने जन्म नहीं लिया। அவருடைய தாய் இருக்க வாழ்ந்த அந்த வீட்டில் அவர் பிறக்கவில்லை. उनकी माता वो जीवन बिताए वो दिन में भी उस जगह पर भी उन्होंने जन्म नहीं लिया। ஒரு பிரயாணத்தில் அவர் பிறந்தார். एक रास्ते की ओर जाते समय वहाँ पे उस जर्नी में उन्होंने जन्म लिया। எங்கு இடமே இல்லை. कहीं पे स्थान नहीं, அது கிடைத்தது ஒரு மாட்டு தொழுவம். एक जर्नी में उन्होंने जन्म लिया, மாட்டு தொழுவம், கோஷாலா. गौशाला में। அப்படி என்றால் இந்த சர்வ சிருஷ்டிக்கும் அவர் எஜமானாக இருந்தும் அவர் ஏழ்மை என்னதென்று அவர் உணர்ந்து இருந்தார். सारे सृष्टि का मालिक होने के बाद भी एक नीचा स्थान क्या है करके वो जानते थे। அதனால்தான் அவர் தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார், इसलिए वो अपने चेलों को देख के यीशु मसीह कहते हैं, தரித்திரராகி நீங்கள் பாக்கியவான்கள். जो आप दरिद्र है आप लोग धन्य हैं। ஆனால் எந்த ஐஸ்வர்யவான்களை பார்த்து அவர்கள் அப்படி இதுவரை அப்படி சொல்லவே இல்லை. लेकिन वो किसी धनी व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं कहे हैं। அந்த காலத்திலும் ஐஸ்வர்யவான்கள் இருந்திருப்பார்கள் அல்லவா? उस समय में भी धनी लोग तो रहे होंगे, ஆனால் எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யனும் பார்த்து அவர் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று அவர் சொல்லவே இல்லை. लेकिन किसी धनी व्यक्ति को देखकर तुम आशीषित व्यक्ति हो करके நீ उन्होंने பாக்கியவான், நீ பாக்கியவதி என்று எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யனும் பார்த்து சொல்லவில்லை. तो धन्य है करके देखकर किसी भी धनी व्यक्ति को नहीं कहा। கஷ்டப்படுகிற ஜனங்கள், தரித்திரா இருக்கிற ஜனங்கள், அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் பாக்கியவான். कष्ट उठाने वाले लोग, दरिद्र लोगों को देखकर यीशु मसीह कहता है आप धन्य हैं। நீங்கள் மத்திய எழுதிய சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 4வது வசனம், मत्ती रचित सुसमाचार 5:4. 5वां अध्याय उसका 4वां वचन। धन्य है वे जो हाँ। शोक करते हैं, हाँ। क्योंकि वे शांति पाएंगे। துயரப்படுகிறார்கள், சோக் கர்த்தே, துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான், பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள். அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள். वो शांति पाएंगे। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவர்கள் துயரப்படுகிறார்கள், அப்படி என்றால் கஷ்டப்படுகிறார்கள், மிகவும் அவர் வருத்தத்தோடு இருக்கிறார்கள். शोक करते हैं, कष्ट उठाते हैं और बहुत चिंता में रहते हैं। அவர்களை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், उनको देख के यीशु मसीह कहते हैं நீங்கள் பாக்கியவான். आप धन्य हैं। நீங்கள் கஷ்டப்படுகிறீர்கள், आप कष्ट उठाते हैं, நீங்கள் சோகப்படுகிறீர்கள், आप शोक करते हैं, நீங்கள் அவஸ்தைப்படுகிறீர்கள், आप अवस्था उठाते हैं, உங்களை கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை, आपको पूछने के लिए कोई भी नहीं है, விசாரிக்கிற ஜனங்கள் யாரும் இல்லை, आपका विचार करने कोई भी नहीं है, உங்களை எல்லாரும் கைவிட்டார்கள், आपको सबने हाथ छोड़ दिया है, உங்களுக்கு கை கொடுக்கிறவர் யாரும் இல்லை, आपको हाथ देने वाला कोई नहीं है, உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன் வருவர்கள் யாரும் இல்லை, आपको मदद करने वाले कोई भी नहीं है। நீங்கள் ரயில் பட்டடியில் நடந்து போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள், आप रेल पटरी में चल रहे हैं, நீங்கள் காய்கிற வெயிலில் நடந்து போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள், और धूप में चल रहे हैं, நீங்கள் பாக்கியவான். आप धन्य हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் அவர் அப்படியாக வந்த ஒரு ஏழைகளுடைய கஷ்டம், பாடு, நிந்தை, பிரச்சனை, வேதனை என்ன என்று அவர் அறிவார். ये परमेश्वर जो है एक गरीब का समस्या क्या है, उसका परिस्थिति क्या है, वो कितना दुख उठाता है, ये जानने वाला प्रभु है। அதனால்தான் அவர் கஷ்டப்படுகிறவர்களை, துயரப்படுகிறவர்களை அவர் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்கிறார். इसीलिए वो दुख उठाने वाले, शोक उठाने वालों को कहता है कि परमेश्वर तुम धन्य हो। ஏனென்றால் क्योंकि நீங்கள் ஆறுதல் அடைவீர்கள். क्योंकि तुम शांति पाओगे।
ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் ஆறுதலின் தெய்வம், क्योंकि हमारा शांति दाता है, ஆறுதல் படுத்துகிற தேவன். शांति देने वाला परमेश्वर है। அதனால் நாம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு யாரும் இல்லாவிட்டாலும், நமக்கு எதுவும் இல்லாவிட்டாலும், हमको अगर संसार में कोई भी नहीं है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो நம்மை விசாரிக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார். हमारा पूछताछ करने वाला एक व्यक्ति है। பவுல் அதுதான் சொல்கிறார். प्रेरित पौल यही बात कहते हैं, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியினால், वो आपको आपका विचार करता है, इसीलिए விசாரிக்கிறவர் பூச்தாச் करने वाला, आपका पूछताछ वो करने वाला है, इसलिए உங்களுடைய எல்லா கவலைகளையும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். आपके हर एक बोझ को उसके ऊपर रख दो। நீங்கள் மற்ற ஜனங்களிடத்தில் உங்களுடைய பிரச்சனை சொல்லும் பொழுது, जब आप दूसरे लोगों पर अपना जो समस्या को आप कहते हो, சில நேரம் கேட்பார்கள், कभी वो सुनेंगे, சில நேரம் கேட்பது போல ஒரு பாவனை செய்வார்கள். कभी सुनने जैसा एक भावना बनाएंगे। போல போல லக்கி குछ बोल रहा था என்று அப்படியாக அவர்கள் ஒரு சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக हाँ, கேட்பார்கள். बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ करके वो बोलेंगे। லக்கி அவருடைய பிரச்சனையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். लकी अपने समस्या को बताएगा, அவர்கள் காதில் வாங்கவில்லை. वो कान में नहीं सुना, அவர் வேற என்னமோ ஞாபகம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது. उनका ध्यान वगैरह कोई कहीं और लगा है। அப்பொழுது லக்கி அந்த பிரச்சனையை சொல்வதை நிறுத்தி விடுகிறார். तो लकी वो समस्या बोलना छोड़ देता है, அவர் எங்கேயோ ஞாபகம் எங்கேயோ வச்சு நான் சொல்றது எதுவும் காதலே வாங்கல क्योंकि वो अपना ध्यान कहीं और रख के अपना बातों में ध्यान ही नहीं लगाए, என்று லக்கி சொல்வதை நிறுத்தி तो விட்டார். लकी बोलना छोड़ दिए। பிறகு அந்த மனுஷன் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக சொல்கிறார். फिर वो मनुष्य फॉर्मेलिटी के लिए बोलता है, போல போல லக்கி, நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன், நான் அங்க பார்த்தாலும் நீ என்ன சொல்றது கேட்டுன்னு தான் இருக்கு. बोलो बोलो, मैं उधर देखने से भी मैं आपकी बात को सुन रहा था। ஆனால் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, அவர் நம்மை விசாரிக்கிற தேவன். वो हमारा पूछताछ करता है, அதனால் நம்முடைய குறைகள் எல்லாம் அவர் மேல் நாம் வைத்திருக்கிறோம். इसलिए हमारे हर एक कमी घटी को हम उसके पास पहुंचाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்திருங்க. वो पूछताछ करता है, इसीलिए हम आपकी चिंताओं को उसके ऊपर रख दो। இயேசு கிறிஸ்துடைய சீடர்கள் இயேசுவோடு கூட நடந்தார்கள் 12 பேர். यीशु मसीह के चेले यीशु के मसीह के साथ चले हैं, 12 चेले। அவர்களுக்கு எதுவும் குறை இல்லாமல் இருந்ததா? क्या उनको कोई कमी घटी नहीं था? அவர்கள் பார்த்தால் வயல் வழியாக போகும் பொழுது वो एक खेत की ओर से जब चल के जा रहे थे, அந்த கம்பு பாஜ்ரா அது உடைச்சு அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். वो बाजरा को तोड़कर वो लोग खाते हैं। அப்படின்னாலும் அவர்களுக்கு சாப்பாடு ரொட்டி கிடைத்திருக்காது. அதனால்தான் அவர்கள் அந்த கதிரை உடைத்து அது நிமிட்டியா சாப்பிடுகிறார்கள். इसका मतलब उनको रोटी नहीं मिला होगा, इसलिए वो बाजरे को तोड़कर उसको खाने लगे हैं। பரிசேயர்கள் இயேசுக்கு சொல்கிறாரு, फरीसी लोग यीशु को कहते हैं, இயேசுவே, यीशु, இப்படி சீடர்கள் பாரு அந்த கம்பங்கதை உடைச்சு இப்படி சாப்பிடுகிறார்கள். और तुम्हारे चेले देखो ऐसे खेत में से सब बाजरे सब तोड़ के और खाते हैं। அப்படின்னால் அவருடைய சீடர்களும் மிகவும் ஏழ்மையாக இருந்தார்கள். इसका मतलब उसके चेले भी बहुत ही गरीबी में थे। எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியர்கள் லக்கணம் पहला कुरिन्थियों को लिखा पत्रिका சாப்டர் 4 वर्सेस 11. 4वां अध्याय उसका 11 वचन। ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியர் சாப்டர் 4 11 to 13. இந்நேரம் வரைக்கும் பசி உள்ளவர்களும் தாகம் உள்ளவர்களும் நிர்வாணிகளும் குட்டுண்டவர்களும் தங்க இடமில்லாதவர்களுமாய் இருக்கிறோம். எங்கள் கைகளினாலே வேலை செய்து பாடுபடுகிறோம், வையப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுறோம், துன்பப்பட்டு சகிக்கிறோம், தூசிக்கப்பட்டு வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்நாள் வரைக்கும் உலகத்தின் குப்பையை போலவும் எல்லாரும் துடைத்து போடுகிற அழுக்கை போலவும் ஆனோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இவர்களெல்லாம் யார்? ये कौन है? இயேசு கிறிஸ்துடைய அப்போஸ்தலர்கள். ये सब यीशु मसीह के अपोस्तलों के बारे में लिखा है। இயேசு கிறிஸ்துடைய சீடர்கள். यीशु मसीह के चेले हैं। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு கூட அவர்கள் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிறார்கள். यीशु मसीह के बाद भी वो सुसमाचार का सेवकाई करते हैं। अनेक அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் விடுதலை செய்கிறார்கள். अनेक अद्भुत अनेक चुटकारा चमत्कार करते हैं। இயேசுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இயேசுக்காக சுவிசேஷ ஊழியத்தை நாடுகள் தேசங்களாக அவர்கள் சுற்றி திரிந்து ஊழியம் செய்கிறார்கள். यीशु मसीह के लिए जगह जगह घूमकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது? उनका परिस्थिति कैसा था? அவர் நல்ல ஒரு வீடு, எல்லா தேவைகள் எல்லாம் சம்பூர்ணமாக அவர்கள் இருந்தார்களா? क्या हर एक घर का साथ हर एक संपूर्ण जरूरतों के साथ वो लोग थे क्या? हिंदी में पढ़ने पाए 4 verses 11 to 13.
हम इस घड़ी तक भूखे इस घड़ी तक हम भूखे और प्यासे और नंगे हैं भूखे प्यासे और नंगे हैं और भूसे खाते हैं और भूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके अपने परिश्रम ही करते हैं। हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमें बुरा कहता है, हम आशीष देते हैं। हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं का कुरच्छन के समान ठहरे हैं। सब वस्तुओं का कुरच्छन के कुर्चन यानी टिश्यू पेपर ऐसे साफ करके कहाँ फेंकेगा? कूड़ा में फेंकेगा, डस्टबिन में फेंकेगा। हालेलुया। समान। यीशु मसीह का प्रेरित लोग, चेले लोग का हालत देखो कैसा था। भूखे था, प्यासे था, नंगे था, कपड़ा नहीं था। हम कुछ भी नहीं है। खाने के लिए उनको खाना नहीं था। कई दिन उन लोग भूखे था, पूछने वाला नहीं है। धक्का खाता था, लोग उन लोग को उनको भगाते थे, मारते थे। हालेलुया। वही लोग कह रहा है ना, वही लोग कह रहा है हम मार खाते थे, हम धक्का खाते थे, हम भागते थे, हम अपना खुद का हाथ से क्या करते थे? मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। क्यों यीशु मसीह नहीं देखा उन लोगों को, अपना प्रेरित लोगों को यीशु मसीह के साथ रहते समय? और यीशु मसीह जो है स्वर्गराज जाने के बावजूद भी क्या यीशु मसीह का दृष्टि उनके ऊपर नहीं था? था नहीं था? था। इसलिए यीशु मसीह अपना चेलों को बोला, जो भूखे प्यासे लोग, आप लोग क्या है? धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग शांति पाएगा, आप लोग तृप्त होगा। பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், जो भूखे प्यासे हैं वो धन्य है என்றால் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்। क्योंकि वे तृप्त हो जाएंगे। தேவன் ஒரு நாள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் திருப்திப்படுத்துவார்। प्रभु एक दिन अपने राज्य में इन लोगों को तृप्त कराएगा। ஒரு நாள் மாத்திரமல்ல, एक दिन नहीं, யுகான யுகம் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவார்। युगान युग प्रभु इनको तृप्त करेगा। அதுதான் தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து சொல்கிறார், பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்। वही चेलों को देखकर यीशु मसीह कहता है, जिसको प्यास और भूख है वो धन्य है। நீங்கள் சரீரத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாகம், சரீரத்தில் ஏற்படக்கூடிய பசியை நீங்கள் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்தாமல், நீங்கள் தேவன் பேரிலும் தேவனுடைய வார்த்தை பேரிலும் நீங்கள் பசி தாகம் உள்ளவராக இருந்தீர்களோ நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள்। अब शरीर में और प्यास और भूखे रहने से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रभु के वचन में प्रभु के लिए प्यास और भूखे रहे तो प्रभु आपको तृप्त करेगा। நீங்கள் அப்படியே 2 Corinthians अब दूसरा कुरिन्थियों में chapter 11 verses 23 to 27, 11 अध्याय उसका 23 से 27। chapter 11 दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23। 23। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ मैं पागल के समान कहता हूँ, हाँ मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, हाँ बार बार कैद होने में, हाँ कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखियों में। हाँ 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेत खाए। 1 बार मुझ पर पत्थरवार किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रा में, नदियों के जोखियों में, डाकुओं के जोखियों में, अपने जाति वालों से जोखियों में, अन्य जातियों से जोखियों में, नगर के जोखियों में, जंगल के जोखियों में, समुद्र के जोखियों में, झूठे भाइयों के बीच जोखियों में रहा। परिश्रम, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का चेले यीशु मसीह का साथ रहा हुआ और प्रेरित पौल कहता है
तो हम इस संसार में இந்த பூமியில் நாம் எவ்வளவு பாடுபட்டோம் என்று எவ்வளவு பசியாக இருந்தோம் என்று இங்க பவுல் சொல்கிறார். या प्रेरित पौल कहते हैं कि इस धरती में हम कितना भूखे प्यासे थे, कितना हमने तकलीफ उठाया, उन बातों का वर्णन करते हैं। நாங்கள் கையினால் வேலை செய்து சாப்பிட்டோம். हम हाथ से काम करके खाए हैं, நாம் பிரயாசப்பட்டோம். हमने प्रयास किया है, நாம் வருத்தத்தில் இருந்தோம். हम दुख में थे, அநேக கண் விழித்து தூக்கமில்லை கண் விழிப்புகளில் இருந்தோம். अनेक नींद नहीं है, हम आंख खोल के हम जागते थे, அநேக உபவாசங்களில் இருந்தோம். अनेक उपवासों में थे, குளிரில் நாங்கள் அவஸ்தைப்பட்டோம். हम ठंडी में अवस्था उठाया, நாம் நிர்வாணத்தினால் நாம் மிகவும் வேதனைப்பட்டோம். हम नंगेपन में बहुत वेदना उठाए, 5 முறை பிடிபட்டு யூதர்களால் நாங்கள் 49 அடிகள் கோடைக்கானி அடிகள் நாங்கள் வாங்கினோம். 5 बार यहूदियों से पकड़े गए और हमने कोड़े खाए। இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாடுள்ள ஒரு வாழ்க்கை, பிரச்சனை உள்ள வாழ்க்கை, इस प्रकार का एक समस्याओं से भरा हुआ एक जीवन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்வளெல்லாம் பாடுகளுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து சொல்வது என்றால் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக इतना இருக்கிறீர்கள். सब समस्या के बाद यीशु मसीह से क्या कहता है कि बे- आप लोग धन्य हैं। பேதுரு இயேசுவிடத்தில் கேட்கும்போது இயேசு என்ன சொல்கிறார்? पतरस यीशु से मिलते वक्त यीशु मसीह क्या कहते हैं? பேதுரு கேட்கிறார், पतरस पूछते हैं, ஆண்டவரே நான் எல்லாவற்றையும் விட்டு நாங்கள் உம்முடைய பின்னால் வந்தோமே, எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு 12 சிம்மாசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். स्वर्ग राज में आपके लिए 12 सिंहासन रखा जाएगा। நீங்கள் 12 கோத்திரங்களுக்கு நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். 12 गोत्रों के लिए आप न्याय चुकाने वाले बनेंगे। பசிதாகம் இல்லாத தேசத்தில் நீங்கள் சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்திருப்பீர்கள். भूख प्यास ना रहने वाले देश में आप सिंहासन में बैठोगे। வியாதியும் வறுமையும் இல்லாத தேசத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து என்றென்றைக்கும் வாழ்வீர்கள். बीमारी और गरीबी नहीं रहने वाले देश में आप सदा के लिए जिएंगे। நீங்கள் நிந்தையும் போராட்டமும் சண்டையும் சச்சரவும் இல்லாத ஒரு தேசத்தில் நீங்கள் சமாதானமாக என்னோடு கூட இருப்பீர்கள். निंदा तकलीफ समस्या लड़ाई ना होने वाले देश में आप मेरे साथ शांति से आप रहेंगे। அப்படியே நீங்கள் பிலிப்பிக்கு எழுதிய லக்னம் फिलिपियों को लिखा पत्रिका 4 verses 4वां अध्याय 11, 12 11 और 12। ये எபேசியர் முடிந்தவனே फिलिपियों का पत्रिका chapter 4 11 and 12। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण अपने घटी के कारण यह कहता हूँ, ये कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है कि कि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हो जिस दशा में हो उसी में संतोष करो। उसी में संतुष्ट हो। मैं दीन होना भी जानता हूँ मैं दीन होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और बढ़ना हुआ जानता हूँ। और हर एक बात और सब दशाओं में भी सब दशाओं में भी तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना सीखा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। புரட்சியினால் हाँ நான் இப்படி சொல்லுகிறதில்லை, हाँ ஏனெனில் ஆ. நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனரம்மியமாய் இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். हाँ தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும், ஆ. வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும். ஆ. எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியா இருக்கவும் பட்டினியா இருக்கவும் हाँ பரிபூர்ணம் அடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன். हालेलुया। அல்லேலூயா. இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. यही है मसीह जीवन। எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும், कैसा परिस्थिति में भी रहे, அதாவது தாழ்ந்திருக்கவும் कि हम नीचे स्थान में भी रहे, வாழ்ந்திருக்கவும் अच्छे स्थान में भी रहे, குறைவுகளிலும் நாம் மன ரம்பியமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். अपनी कमी कटियों में भी हम संतुष्ट से रहना हम सीखे। எந்த இடத்திலும் किसी भी स्थान में, எல்லா சூழ்நிலையிலும் हर एक परिस्थिति में திருப்தியாக இருக்க நான் கற்றுக்கொண்டேன். तृप्त से रहना मैंने सीखा है। நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे रहते हैं? கொஞ்சம் குறைவு வந்தால் நாம் புலம்புவோம். थोड़ा कमी कटी होने से हम उतराते हैं, ஆண்டவரே ஏன் கஷ்டம் வந்தது? प्रभु क्यों कष्ट आया, ஆண்டவரே ஏன் இப்படி ஆனது? क्यों ऐसा हुआ है? இந்த உலக ஜனங்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்களே, ये संसार के लोग सब अच्छे हैं,
என்ன ஆண்டவர் என்ன நீ பார்க்கலையா, என்ன என்ன உனக்கு தெரியலையா, क्या प्रभु आपने मुझे नहीं देखा क्या? நான் இவ்வளோ நான் அவஸ்தைப்படுகிறேனே मैं इतना अवस्था उठाता हूँ। என்று விசுவாசிகள் கதறுவார். ऐसे विश्वासी कुड़कुड़ाएंगे। இயேசு கிறிஸ்துடைய சீசருடைய நிலைமையை பாருங்கள். यहाँ यीशु मसीह के चेलों का परिस्थिति को आप देखो। அவர்கள் கஷ்டத்திலும் அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்க கற்றுக்கொண்டார்கள். वो अपने कष्ट में भी वो खुशी से रहना सीखे हैं। அவர் கஷ்டத்தையும் அந்த சகிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை அவர்களுக்கு இருந்தது. कष्ट को भी सहने का जो मन का परिस्थिति था उनको जरूर था। அவர்கள் பட்டினியா இருக்கவும் அவர் கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். वो भूखा रहना भी वो लोग सीखे थे। யாராவது ஒரு நாள் ஒரு பாஸ்டிங் இருந்தா அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு நான் பாஸ்டிங் எல்லார்ட்ட சொல்லுவாங்க. कोई फास्टिंग में रहने से सबको बोलेंगे आज मैं फास्टिंग। நான் காலையில இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ஒரே ஒரு பன்னு மட்டும் சாப்பிட்டேன், அதுக்கு ஒரு ஒண்ணுமே फिर சாப்பிடல एक ही एक बन खाया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। என்று எல்லார்ட்ட சொல்லுவாங்க, फिर सबको बोलेंगे நான் பாஸ்டிங். मैं फास्टिंग। ஆனா लेकिन இங்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் பவுலை பார்க்கும் பொழுது लेकिन यीशु मसीह के चेले पौल को जब देखते हैं, எவ்வளவு நாள் அவர்களுக்கு சாப்பாடு உணவு கிடையாது. उनको भोजन नहीं था। அவர்கள் பட்டினியா இருக்க கற்றுக்கொண்டார்கள். वो भूखा रहना उन्होंने सीख लिया। அவர்கள் உபவாசம் இருக்க கற்றுக்கொண்டார்கள். उन्होंने उपवास रखना सीख लिया। அவர் குறைவு பட அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள். कमी और कटी में रहना उन्होंने सीख लिया। எல்லாவற்றையும் தாழ்மையாக இருக்க அவர்கள் हर கற்றுக்கொண்டார்கள். एक बातों में अधीन रहने में और इन बातों को उन्होंने सीख लिया। அவர்களுக்கு நிறைவு வரும்போது அதை அனுபவிக்கும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள். उनको जब भरपूरी आया उसको अनुभव करना भी उन्होंने सीखा। அதாவது நன்றாக வாழ்ந்திருக்கும் தெரியும், நம்ம தாழ்ந்திருக்கும் தெரியும். अच्छा जीना भी उन्होंने सीखा और अच्छे कमी कटी में भी उन्होंने अपना जीवन बिताना सीखा है। அப்படிப்பட்ட விசுவாசி தான் ஜெயிக்க முடியும். ऐसा एक विश्वासी ही जीवन जीत हासिल कर सकता है। நமக்கு இல்லை என்ற நேரம் வரும்பொழுது இயேசுக்கு மாத்திரம் நாம் தெரிஞ்சால் போதும். हमारे पास अगर नहीं है वो परिस्थिति आने से केवल यीशु मसीह को बात जानने से काफी है। சில ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், कुछ लोग हैं பார்க்கிற ஜனங்களை எல்லாரிடத்திலும் பிராணம் சொல்லிக்கொண்டே போவார்கள். जिसको भी वो देखते हैं हमें सबको अपना समस्या बोलते ही रहते हैं। எத்தனை பேரை சந்திக்கிறார்களோ जितने लोगों को मिलेंगे அவர்களை எல்லாரிடத்திலும் சொல்வார்கள், सबको बोलेंगे ஐயோ என்ன செய்யறதே தெரியவில்லையே, क्या करना है नहीं मालूम, வாடகை கட்டணும், भाड़ा बांधना है, பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், बच्चों को फीस भरना है, இது வாங்கணும், அது ரேஷன் கிடையாது, ये खरीदना है, रेशन नहीं है, இந்த பில் கரண்ட் பில் கட்டணும், करंट बिल भरना है। இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் எல்லார்கிட்ட சொல்லுவாங்க. सारा समस्या सारे लोगों को बोलेंगे। மனிதர்கள் என்ன செய்வார்கள், मनुष्य लोग क्या बोलेंगे, அவர்கள் கேட்டுவிட்டு அப்படியே போய்கொண்டே இருப்பார்கள். वो सुनकर जाते रहेंगे। நம்முடைய குறை இயேசுக்கு மாத்திரம் தெரிஞ்சால் போதும். हमारी कमी घटी जो है यीशु को बोलने से काफी है। அவருக்கு தெரியாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுவும் கஷ்டமோ செழிப்போ வராது. यीशु मसीह के अनजान से हमारे जीवन में कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं आएगा। நீ தாழ்ந்திருக்க தெரிந்தால்தான் நீ வாழ்ந்திருக்க தெரியும். आप कमी में रहोगे तो तभी आप भरपूरी में आप जीना सीखोगे। நீ கஷ்டமான காலத்தில் நீர் ஜெயித்தால்தான் சுகக்ஷேமமான காலத்தில் நீ வாழ முடியும். कष्ट के दिनों में आप जय पाने से ही अच्छे भलाई के दिनों में आप सीना तान के आप रह सकते हैं। நீ கஷ்டத்தை பார்க்காமல் நீ செழிப்பாகவே இருந்தால், आप कष्ट को ना देखते हुए सिर्फ आप ऊंचाइयों में ही रहेंगे तो நீ அந்த செழிப்பை நீ சரியாக அனுபவிக்க முடியாது. भरपूरी को आप अच्छे से अनुभव नहीं कर पाओगे। அதை நீ தேவனுக்கு அதை நன்றி சொல்ல முடியாது. आप प्रभु को उसमें धन्यवाद नहीं दे सकते। யோபு என்ன சொன்னான், अयुब ने क्या कहा, கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। இங்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய தன்னுடைய கூடவே இருந்த சீஷர்கள் படுகிற அவஸ்தையை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். यीशु मसीह के साथ चेले उठाने वाले कठिनाई को आप यहाँ पर देखिए। நாம் அவருடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால், हम उसके राज में प्रवेश करना है तो நாம் அந்த இடுக்கமான வாழ்க்கையில் இடுக்கமான பாதையில் நாம் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். हमारे वो सकरे मार्ग पे छोटे से मार्ग में हमारे जीवन में हमें जीना ही पड़ेगा। குறைவு இருக்கும், कमियां होगी, கண்ணீர்கள் இருக்கும், आंसू होगा,
கவலை இருக்கும், चिंता होगा, வியாதி இருக்கும், बीमारी होगी, வறுமை இருக்கும், गरीबी होगी, நிந்தை இருக்கும், निंदा भी होगी, அவமானம் இருக்கும். अपमान होगा। எல்லாவற்றையும் அதுதான் இடுக்கமான வாசல். इसलिए वो सकरा एक रास्ता कहलाता है। அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து இடுக்கமான வாசல் வழியா போங்க. इसीलिए यीशु मसीह कहता है सकरे राह में आप चलो। இடுக்கமான வாசல் போகும்போது எப்படி இருக்கும்? तो सकरे कम छोटे से मार्ग में जाने में कैसा रहेगा? நேரா நடந்து போக முடியாது. सीधा नहीं जा सकते। நம்ம அப்படியே உடம்பு கொஞ்சம் சுருக்கிட்டு அப்படியே தான் நடந்து போக முடியும். अपने आप को ಸ್ವಲ್ಪ थोड़ा सुकड़ कर ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। சில இடத்துல குனிஞ்சு போக வேண்டியது, कभी झुक के जाना पड़ेगा, சில இடத்துல கீழே படுத்து கொண்டு போக வேண்டியது, कभी लेट कर निकलना पड़ेगा, சில இடத்தில் நின்னு போக வேண்டியது வரும். कभी खड़ के कहीं जाना पड़ेगा। இடுக்கமான பாதையில் போகும்போது மிக இந்த ஜங்கல் காட்டில் எல்லாம் போயிருப்பீர்கள். आप जंगल में सब गए होंगे। காட்டுல என்ன ஃபுல்லா அப்படியே வழி நல்லா தார் ரோடு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. क्या जंगल में तार रोड लगा के रखे होंगे? அப்படியே கீழே எல்லாம் கல் இருக்கும், नीचे सब पत्थर होगा, சேர் இருக்கும், और कीचड़ होगा, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லாம் முள்ளு புதர் இருக்கும். यहाँ वहाँ झाड़ी और कांटे होंगे, அவ அது வழியே சரியா இருக்காது. रास्ता ही ठीक नहीं दिखेगा। அங்க நிறைய அந்த ஃப்ளைஸ், அந்த காட்டு பூச்சி, கொசு, மச்சர் அதெல்லாம் இருக்கும். वहाँ बहुत सारे मच्छर, सारे छोटे छोटे कीड़े सब कुछ होगा। அந்த முள் புதர் வந்து நம்ம சற்று பூச்சி இழுக்கும். जो காட்டா जो कांटे का झाड़ी है अपना कमीज को पकड़ के खींचेगा, சில வேற இது வந்துட்டு வேற புஷ் வந்து நம்ம குத்தோம். और दूसरा झाड़ी आके हमें चोट पहुंचाएगा। அதுக்கெல்லாம் நாம் தப்பித்து அது வளைஞ்சி குனிஞ்சி நிமிர்ந்து எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வெளியில் போனால்தான் ஒரு விசாலமான ஒரு பாதை கிடைக்கும். उसमें से बच के ऐसे झुक के निकलने से ही हमें विशाल एक मार्ग हमें आगे मिलेगा। அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 7வது அதிகாரம் சொல்கிறார். மத்தேயு சாப்டர் 7, यीशु मसीह मत्ती 7वां अध्याय में यूं कहता है, 7 chapter 13-14, मत्ती 7 उसका 13 and 14. 13 और 14। फाटक से प्रवेश करो, हाँ क्योंकि चौड़ा है, हाँ वह फाटक और सरल है, हाँ वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ और बहुत से हैं जो हाँ उससे प्रवेश करते हैं। हाँ क्योंकि सकेत है, वह फाटक और कठिन है, हाँ वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ। और थोड़े हैं हाँ। जो उसे पाते हैं। हालेलुया இடுக்கமான வாசல் வழியாய் हाँ பிரவேசியுங்கள். हाँ கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் हाँ வழி விசாலமாய் இருக்கிறது. हाँ அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். हाँ ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் हम्म, இடுக்கமும் வழி நெருக்கமாய் இருக்கிறது. அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். हालेलुया हालेलुया அல்லேலூயா. கேட்டுக்கு போகிற வாசல் மிகவும் விசாலமாக இருக்கிறது. क्योंकि सकेत फाटक से सकेत फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। அதாவது கேட்டுக்கு போகிற வாசல் 13 सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ क्योंकि वह चौड़ा है, हाँ वह फाटक और सरल है, हाँ। वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। வினாஸ், அதாவது வினாஸ் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் विनाश को पहुंच जाने वाला जो रास्ता है அது அகலமான பாதை. तो बहुत चौड़ा एक रास्ता है। அநேகர் அதில் தான் போகிறார்கள். अनेक लोग उसमें ही जाते हैं। அது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, कोई रुकावट नहीं होना है, எந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, कोई समस्या नहीं होना है, எந்த குறைவு இருக்கக்கூடாது, कोई कमी नहीं होना है, எந்த வியாதியோ வறுமையோ எதுவும் இருக்கக்கூடாது. कोई बीमारी कोई समस्या नहीं होना है। மிகவும் நிம்மதி லக்ஸரியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். बहुत एक सरल जीवन होना है, நல்ல லக்ஸுரி. सबको अच्छा एक आनंदित और सरल जीवन होना है। வேதம் சொல்றது அதில் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். वचन कहता है कि उसमें प्रवेश करने वाले अनेक है, ஆனால் ஜீவனுக்கு போகிற பாதை लेकिन जीवन को जाने वाला जो राह है அது மிகவும் குறுகிய பாதை. जो बहुत सकेत सकेत है। நான் முன்னே சொன்னேன் குறுகிய பாதையில் எவ்வளவு போவது எவ்வளவு கஷ்டம் என்று. मैंने पहले कहा छोटे से रास्ते में जाना कितना मुश्किल है। நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான். हमारा जीवन ऐसे ही है। இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், यीशु मसीह कहते हैं உங்களுடைய பாதை குறுகிய பாதை தான், आपका जो राह है वो सकेत रास्ता है, நீங்கள் அதிலேயே நடந்து போங்கள். आप उसमें ही चलते रहो। நான் அந்த பாதையில் தான் நான் நடந்து வந்திருக்கிறேன். मैंने उसी राह में मैं चल के आया हूँ।
நான் இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது நான் நல்ல ஒரு தேர், நல்ல ஒரு ஏரோப்ளேன், நல்ல ஒரு வசதியான வீடு, நல்ல வசதியான ஒரு பொருட்களோடு நான் வாழவில்லை. मैंने एक अच्छे में धरती में रहते हुए एक अच्छा सकेत रास्ते में, अच्छा महल में, अच्छे सुविधा में मैंने नहीं रहा है। இயேசு கிறிஸ்துக்கு தலை சாய்க்க இடமில்லை. यीशु मसीह को अपना सर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। இயேசு கிறிஸ்து உண்ண உணவில்லை. यीशु मसीह को खाने के लिए भोजन नहीं है। அப்படியாக அவர் நிலையற்று அவர்கள் எங்கும் சுற்றி திரிந்து ஜனங்களை குணமாக்கி அசுத்தாவிகளை துரத்தி அப்படியாக அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். वो हर एक जगह पर जाकर, गलियों में जाकर, हर जगह घूमकर हर एक बीमारियों को चंगा करके आ रहा था। அவர் அப்படியே ஒரு இடத்தில் அவர் எங்கும் நிற்கவில்லை. एक जगह पर कहीं पे भी वो नहीं रुके। இயேசு கிறிஸ்துடைய பர்மனன்ட் கூடாரம் எங்கும் இல்லை. यीशु मसीह का जो परमानेंट जो स्थान था वो कहीं पे भी नहीं था। இரவு நேரங்களில் எங்க இருப்பார்? वो रात की जगह पर कहाँ रहते थे? அவர் ஒலிவ மலையில் இருப்பார். वो ओलिव के पर्वत में रहते थे। பகல் நேரங்களில் எங்க இருப்பார்? दिन में कहाँ रहते थे? அவர் மறுபூமியில் அவர் யாத்திரை செய்து கொண்டிருப்பார். मरुभूमि में वो यात्रा करते थे। மறுபூமியில் சென்று சுவிசேஷம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். मरुभूमि में जाके सुसमाचार सुनाते थे। கடற்கரையில் போய் சுவிசேஷம் செய்வார். समुद्र की तट की ओर सुसमाचार सुनाते थे। அவர்கள் சமுத்திரத்தை கடந்து போய் ஊழியம் செய்வார். समुद्र को पार करके फिर वहां पे सेवकाई करते थे। அப்படிதான் அவருடைய சீடர்களையும் நாம் பார்த்தோம். इसी प्रकार उनके चेलों को भी हमने देखा। அப்படினால் மிகவும் குறைந்த வசதி உள்ள வாழ்க்கை. इसका मतलब बहुत ही कम சுவிதாவால वाला एक जीवन था। எந்த வசதியும் இல்லை. कोई सुविधा नहीं था। இயேசு கிறிஸ்துவோட சீடர்கள் கலிலியா கடல் கடந்து போகும்பொழுது, வனாந்தரம் போகும்போது அவர் கூட எல்லா பொருட்களையும் கொண்டு போனார்களா? यीशु मसीह गलील की ओर जाते समय क्या अपने साथ सारे वस्तुओं को क्या लेकर गए थे? இல்லை, இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களை அனுப்பும்போது அதெல்லாம் பந்தோபஸ்து செய்து இப்பொழுது எப்படி நாம் யாத்திரை செய்ய வேண்டும் எல்லாம் ரெடி செய்து பேக் செய்து நாம் யாத்திரை அப்படி இயேசு கிறிஸ்து அப்படி அனுப்பினாரா? या चेलों को जब भेजते थे क्या उनको पूरा बंदोबस्त करके भेजते थे? जैसे आज के दिन हम यात्रा करते हैं तो पूरा सामान बंदोबस्त करके खाना पीना लेके जाते हैं। இப்போ லக்கிராம் எல்லாம் ஜான்சந்த் ஊருக்கு போக வேண்டும் என்றால் अभी लकीराम या ज्ञानचंद गांव जाते समय எல்லாம் ரெடி செய்து கொள்வார்கள். पूरा तैयारी करते हैं। நல்லா மேத்தி பரோட்டா, मेथी परोठा, அதற்கு சட்னி, चटनी முன்னும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சு, ஃப்ரூட் எல்லாம் வாங்கி வச்சுன்னு और सारे खाने के पदार्थ सब, सब्जी, फल सब खरीद के எல்லாம் பேக் செய்து, सब पैकिंग करके, ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எல்லாம் பேக் செய்து, पीने का पानी सब पैकिंग होके, ரிசர்வேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு, रिजर्वेशन करके, கன்ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ணிட்டு कंफर्म करके அப்பதான் யாத்திரை செய்வார். अब यात्रा करते। அந்த இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீடர்களை எப்படி அனுப்பிச்சாரு? लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे भेजा? நீங்கள் லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷம் சாப்டர் 10 वर्सेस 3 आप लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 3रा वचन, 3 और 4 लूक चैप्टर जाओ 10, देखो, लूक चैप्टर 10 जाओ 3 देखो, 4 मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेड़ों का समान भेड़ियों का बीच में भेजता हूँ। भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, इसलिए ना बटवा, ना झोली, ना झोली, ना जूते लो, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ना मार्ग में किसी से नमस्कार करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं ले जाना? बटवे नहीं ले जाना। बटवे मतलब क्या है? बटवे में क्या होता है? पैसा। इसका मतलब बटवाए नहीं ले जाना तो फिर पैसा कैसे ले जाएगा? परमेश्वर बटवा ले जाने के लिए मना किया है। और जूते भी नहीं पहनना है। हालेलुया। और झोली भी नहीं उठाना है। झोली ले जाने से झोली में क्या होगा? सब अचार वो सब डाल कर ले जाएगा, सब पानी का बाटल, बिस्कुट सब डाल कर ले जाएगा। हालेलुया। वो कुछ नहीं, झोली छोड़ दो इधर, झोली नहीं, झोली मत उठाओ, झोली इधर छोड़ दो, बटवा भी इधर ही छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। वो चेले लोगों का बटवा ही नहीं था, उन लोग कहाँ बटवा रखेगा? ना बटवा था, ना झोली था, ना पैर में पहनने के लिए जूते थे, नंगे पैर। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना चेलों को ऐसे ही भेजा। हालेलुया। हालेलुया। அவர் தேவனாக இருந்தும் वो प्रभु होते हुए भी
अपना தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு अपने चेलों के लिए அவர் இடுக்கமான பாதையெல்லாம் நடத்தினார். उन्होंने वो छोटे से मार्ग में ही चलाया। அப்பொழுது நாம் ஏன் ஏதாவது ஒரு குறை வந்தால் ஏன் நாம் ஆண்டவரே என்று முறுமுறுக்கிறோம்? हम कुछ कमी होने से क्यों प्रभु करके हम बोल जोर से चिल्लाते हैं? அப்போ ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு லக்ஸரியிலே வைக்க வேண்டுமா? क्या हमेशा प्रभु आपको बहुत सुखी से ही रखना है क्या? துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள். जो संकट में तकलीफ उठाते हैं वो धन्य है, वो शांति पाएंगे करके प्रभु ने कहा है। இப்பொழுது நீங்கள் துயரப்பட வேண்டும். अभी आप कठिनाई उठाना है। தேவன் உங்களுடைய துயரத்தை பார்த்து பிறகு உங்களை அவர் சமாதானத்துடன் ஆறுதல் அடைய செய்வார். प्रभु आपके तकलीफ को देखकर बाद में आपको शांति देगा। இந்த பூமியில் கூட ஆரம்பத்தில் நீங்கள் கடினமான பாதையில் போயிருக்கலானால், धरती इस संसार में भी आप आरंभ में बहुत कठिन आप रास्ते में चलेंगे तो உங்களை தேவன் செழிப்பான பாதையிலும் நடத்துவார். प्रभु आपको फिर अच्छे राह में भी चलाएगा। அப்பொழுதுதான் நீங்கள் அந்த செழிப்பை அனுபவிக்க முடியும். तभी वो अच्छे भलाई को आप अनुभव कर सकोगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இல்லை என்றால் உங்களுக்கு எடுத்த உடனே செழிப்பை கொடுத்து விட்டால் आपको सीधा आपको ऊंचाई में पहुंचा देने से உங்களுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியாது. आपको उसका अनुभव नहीं पता चलेगा। அதை நீங்கள் மிகவும் அற்பமாக மிகவும் துச்சமாக நினைப்பீர்கள். उसको आप बहुत तुच्छ जानोगे। உங்களுக்கு கஷ்டம் என்ன என்று தெரியாவிட்டால் आपको कष्ट क्या है करके आप नहीं समझेंगे तो நீங்கள் சுகமாகவும் இருக்க முடியாது. आप सुखी से भी नहीं रह सकते। அதனால் சீடர்களுக்கு எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டாம் என்று ஆர்டர் போட்டார். इसलिए चेलों को उन्होंने कहा सब कुछ तुम कुछ ना उठा के जाओ, மணி பர்ஸ் எடுத்து போக கூடாது. अपना झोला ना लेके जाओ, மணி பர்ஸ் பட்டவா, अपना बटुआ मत लेके जाओ, சாமான்கள் எதுவும் எடுத்துன்னு போக கூடாது. कोई आपके वस्तु मत लेके जाओ, பாதரட்சைகளும் கூட போட்டுன்னு போக கூடாது. जूते भी ना पहन के जाओ। நெக்ஸ்ட் வழியில யாராவது கிடைக்கும் போது அவங்க கையில நீங்க எதுவும் கேட்கவும் கூடாது. और रास्ते में कोई मिला तो किसी उससे आप कुछ पूछना भी नहीं। வெளியில போகும்போது रास्ते में जाते समय பிரதர் என்ன பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுத்து வந்துக்கிறீங்களா, ब्रदर के बिस्किट पैकेट लाए हो क्या, என்ன வாட்டர் பாட்டில் ஏதாவது எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா, वाटर बॉटल कुछ रखे हो क्या, அதுவும் கேட்க கூடாது. वो भी आप नहीं पूछना। இயேசு கிறிஸ்து அங்க கட்டளை கொடுத்து அனுப்புறாரு. यीशु मसीह ने उपदेश देकर भेजा है। நீங்கள் வழியில யாராவது பார்க்கும்பொழுது रास्ते में आप किसी को देखो तो தமிழில் இப்படி எழுதியிருக்கிறது. ऐसा लिखा है, பணப்பையையும் ஆ சாமான் பையையும் ஆ பாதரட்சைகளையும் கொண்டு போக வேண்டாம், ஆ வழியில ஒருவரையும் வினவும் வேண்டாம்। यानी रास्ता में किसी से पूछना भी नहीं. मार्ग में किसी को ना नमस्कार ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। उसमें नमस्कार எதுக்கு செய்வார்கள்? नमस्कार क्यों करते हैं? அது லக்கி பார்த்து லக்கி ஜெயமசிக்கு என்று சொல்லும் பொழுது लकी என்ன கேட்பான்? अंकल जय मसीह की नाश्ता हो गया? नहीं लकी अभी नहीं हुआ। अंकल है मेरा पास वो मेरा बन गया खाना, अब खा लो। हालेलुया। हालेलुया। लोग नमस्कार किस लिए कहते हैं? कुछ हालचाल। हाँ, लेकिन इसमें लिखा है वरवरेम बिना किसी से पूछना भी नहीं बोल रहा है। तमिल में लिखा है किसी, வினவும் வேண்டாம்। इंग्लिश में क्या लिखा है? वर्सेस 4 I am sending you out like a lamb among wolves. Ah. Do not take the purse or the bag and the sandals, Ah. and do not greet anyone on the road. हाँ, यानी रास्ता में किसी को आप जय मसीह भी नहीं बोलना। जय मसीह बोलेगा तो पक्का पूछेगा नाश्ता खाया क्या, नहीं तो बोलेगा क्यों इतना थका हुआ है। जय मसीह के बोलने से क्यों थका है? अरे कल तो यीशु मसीह ऐसी सब छीन कर रख लिया, बटवा छीन लिया, झोली छीन लिया, जूता छीन लिया, वह जाओ सेवकाई करो करके वो थक गया भाई, पैर पूरा छाले पड़ गया करके बोलेगा अरे रे क्या यीशु मसीह आपका ऐसा भेज दिया। आ जाओ, मैं आपको रोटी भी दूंगा, मेरे पास जो 2 जूता है वो 1 जूता भी दूंगा। हालेलुया। आपका बटा नहीं होने से, मेरे पास ज़्यादा नहीं होने से थोड़ा पैसा है, मैं आपको पैसा देंगे, आ जाओ। तो मेरा दोस्त है, इसलिए बोला रास्ता में किसी को क्या नहीं करना, नमस्कार भी नहीं करना, बात भी नहीं करना। आप मैं क्या काम किया, आप जाकर सुसमाचार बताओ। हालेलुया। उसके बाद आप कौन सा घर में रहना, उसके बारे में बाद में यीशु मसीह। हालेलुया। ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்ற முதலாவது சொல்லுங்கள்,
சமாதான பாத்திரனாகிய இருந்தால் ஆ, நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவர்களிடத்தில் தங்கும். ஆ, இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்கே திரும்பி வரும். हाँ। हालेलुया। तो आप जाओ, ये घर में जाओ, जाते ही उस घर के लिए शांति का सुसमाचार बोलो, उनको उस घर को आशीष करो। हालेलुया। अगर वो घर आशीष का है तो वो घर आशीषित पाएगा। हालेलुया। वो गांव में पूरा सेवगाई होने तक उस घर में रहकर आप सेवगाई करो। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யம் பார்த்து நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று அவர் சொல்லவே இல்லை. यीशु मसीह किसी भी धनी को व्यक्ति को देखकर तुम धन्य हो करके प्रभु ने नहीं कहा, என்றால் வேதம் சொல்கிறது क्योंकि वचन कहता है உலக சிநேகிதம் जो संसार का जो दोस्ती है தேவனுக்கு விரோதமான பகை. प्रभु के विरोध में रहने वाला बात है। உலக சிநேகிதம் அது அது சமாதான பாதையில் உங்களுக்கு வழி நடத்தாது. संसार का जो मित्रता है आपको शांति का मार्ग में नहीं ले जाएगा। உலகம் யாரை சிநேகிக்கும்? संसार किसे प्रेम रखेगा? உலகம் ஐஸ்வர்யவான்களை சிநேகிக்கும். संसार जो है धनी व्यक्ति से प्रेम रखेगा, ஞானிகளை சிநேகிக்கும். ज्ञानी को प्रेम रखेगा, நல்ல பதவியில் இருக்கிற ஜனங்களை சிநேகிக்கும். ऊंचे पद में रहने वालों से प्रभु संसार प्रेम रखेगा। இந்த ஏரியா கவுன்சிலர் ये एरिया का काउंसलर आ रहा है क्या? அவர் பின்னால் 10 பேர் வருவாங்க. उसके पीछे 10 लोग दौड़ेंगे। சார் இது சார் அது சார். हाँ सर, ऐसे वैसे। ஏனென்றால் நாளைக்கு ஏதாவது கவுன்சிலருக்கு ஏதாவது வேலை கேட்டால் அவர் செய்து கொடுப்பார். कल कुछ काम उनसे पूछेंगे तो करके देंगे। நீயும் நானும் போனால் நம்ம சுத்தி யார் வருவார்கள்? आप और मैं जाएंगे तो हमारे साथ कौन आएगा? வரமாட்டார். कोई नहीं आएगा। இந்த உலகம் ஐஸ்வர்யான்களை சிநேகிக்கும். ये संसार जो है धनी लोगों से प्रेम रखता है। பதவியோ பட்டமோ இல்ல ஸ்டேட்டஸோ இருக்கிற ஜனங்களை சிநேகிக்கும். अच्छा स्थान ऊंचे पद में रहने वालों से संसार प्रेम रखता है। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து யாரை சிநேகிக்கிறார்? लेकिन यीशु मसीह से प्रेम रखता है? ஏழைகளை, தரித்திரர்களை, பசியா இருக்கிறவர்களை, கடினமான வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களை அவர் சிநேகிக்கிறார். दरिद्रों को, भूखे प्यासे और कठिनाई और कष्ट उठाने वालों से प्रभु प्रेम करता है। அவர்களை பார்த்து நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்கிறார். उनको देखकर प्रभु कहता है कि आप धन्य हैं। ஐஸ்வர்யவான்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? धनी लोगों को देखकर प्रभु क्या कहता है? லூக்கா சுவிசேஷம் chapter 6 verses 24. Luke 6:24. लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 और 25। ஐஸ்வர்யவான்களாகிய உங்களுக்கு ஐயோ, உங்கள் ஆறுதல்களை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தது. திருப்தி உள்ளவர்களாய் இருக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ, பசியா இருப்பீர்கள், இப்பொழுது நகைக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ, இனி துக்கப்பட்டு அழுவீர்கள். परंतु हाय तुम पर जो धन्यवान हो. ये இங்கு இயேசு கிறிஸ்து ஐஸ்வர்யவான்களை பார்த்து உங்களுக்கு ஐயோ ஹாய் என்று சொல்கிறார். यीशु मसीह धनी को देखकर कहता है कि आप पर हाय, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके. हाँ, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे. हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे. हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उसके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा ऐसा ही किया करते थे. हालेलुया. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவிடம் ஒரு செல்வந்தன், நல்ல பணக்காரன் வந்தார். यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आते हैं। ஐயா அவன் என்ன சொல்கிறான்? वो आके क्या कहते हैं? எனக்கு அவனுக்கு எப்படியாவது பரலோகம் போக வேண்டும். उसको किसी भी तरह स्वर्ग में पहुंचना है। அந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கை எல்லாம் ஓகே, எல்லா வசதி இருக்குது. धरती जीवन सब ठीक है, सब सारे सुविधा है। இப்பொழுது அவனுக்கு பரலோகம் எப்படியாவது போக வேண்டும். उसको अभी किसी भी प्रकार स्वर्ग में पहुंचना है। அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பிடிச்சாதான் பரலோகம் போக முடியும். यीशु मसीह को पकड़ने से वो स्वर्ग में जा सकते हैं। ஏனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் பரலோகத்துக்கு வாசலா இருக்கிறார். क्योंकि केवल यीशु मसीह स्वर्ग के लिए एक मार्ग है, சொர்க்க द्वार है, स्वर्ग के लिए एक द्वार है। ஆனால் அவன் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவன் மிகவும் ஒரு ஐஸ் வைக்கிறான். और यीशु मसीह को आके ऐसे कुछ करता है। என்ன சொல்கிறான்? क्या आपको कहता है? நல்ல போதகரே என்று அவன் ஆரம்பிக்கிறான். ये अच्छे प्रचारक करके आरंभ करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? यीशु मसीह क्या कहते हैं? நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானே, तू मुझे क्यों अच्छा व्यक्ति कहता है? அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஐஸ்வர்யவானை பார்த்து கேட்கிறார், यीशु मसीह धनी व्यक्ति से कहते हैं, என்னை நல்லவன் என்று ஏன் சொல்கிறார்? मुझे क्यों तुम अच्छा व्यक्ति बोल रहे हो? நீங்கள் லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷம் आप लूका रचित सुसमाचार 18 chapter 18
18 वचन 18 अध्याय Luke chapter 18, लूका का 18 अध्याय 19 18 verses 19 18 से पढ़ो, 18 से 18 का 18 से पढ़ो. किसी सरदार ने அப்பொழுது தலைவன் ஒருவன் அவரை நோக்கி हाँ, நல்ல போதகரே हाँ, நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார். हाँ, அதற்கு இயேசு हाँ, நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன், हाँ, தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே. हाँ, हाँ, कंटिन्यू पढ़ो. விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, हाँ, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, हाँ, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக, हाँ, உன் தகப்பனை உன் தாயை கனம் பண்ணுவாயாக என்கிற கற்பனைகளை हाँ, நீ அறிந்திருக்கிறாயே என்றார். हाँ, அதற்கு அவன் இவர்களை எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன் என்றார். हाँ, இயேசு அதை கேட்டு இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு, உனக்கு உண்டானவர்கள் எல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார். हाँ, அவன் அதிக ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனானபடியால் இதை கேட்ட பொழுது மிகுந்த துக்கம் அடைந்தான். அவன் மிகுந்த துக்கம் அடைந்ததை இயேசு கண்டு, ஐஸ்வர்யம் உள்ளவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதே எவ்வளவு அரிதாய் இருக்கிறது. 25. ஐஸ்வர்யவான் हाँ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கிலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாய் இருக்கும் என்றார். हालेलुया. हालेलुया. हाँ, पढ़ो सिस्टर, 18 से पढ़ो. किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर. तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, हाँ, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना. उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ. हाँ, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुम्हें अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आके मेरे पीछे हो ले. यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था. यीशु ने उससे कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है. परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हालेलुया. 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 இங்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், यीशु मसीह कहते हैं ஐஸ்வர்யவான் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பது மிக 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 கடினம். कि धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत बहुत कठिन है. ஊசியின் காதில் एक सुई का सुई में सुई की आंख में ஒட்டகமானது நுழைந்துவிடும், एक ऊंट निकल जाएगा, ஆனால் ஐஸ்வர்யவான் பரலோகத்தில் பிரவேசிக்கும். लेकिन धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करना उतना मुश्किल है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதனால் தான் தரித்திரரை பார்த்து நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். इसीलिए दरिद्रों को देखकर परमेश्वर कहता है कि आप धन्य हैं. ஏனென்றால் ஐஸ்வனுடைய மனமெல்லாம் இதில் மேல் இருக்கும், कि धनी व्यक्ति का पूरा मन किधर रहता है? அவருடைய சம்பத்து மீது இருக்கும். अपना संपत्ति में रहता है. இவ்வளோ வருமானம் வந்தது, इतना आया है இன்னும் வர வேண்டும், और आना है, இந்த கணக்கு என்னாச்சு, ये हिसाब क्या हुआ, அந்த கணக்கு என்னாச்சு, वो हिसाब क्या हुआ, அது வெளிநாட்டு பணம் என்னாச்சு, वो दूसरे देश का जो धन आया वो क्या हुआ, உள்நாட்டு பணம் என்னாச்சு, इस देश का धन क्या हुआ, அது ட்ரக்கு என்னாச்சு, वो ट्रक का क्या हुआ. இப்படி இத அவனுடைய முழு நம்பிக்கை, முழு சிந்தை மற்றும் அந்த பணத்தின் மேலே இருக்கு. उसका पूरा विश्वास, उसका पूरा चिंता वो धन में ही रहता है. இருந்தாலும் அவனுக்கு பரலோகம் போவதற்கு ஆசை. फिर भी उसको स्वर्ग में जाने के लिए उसको मन है. அப்பொழுது இயேசுவிடத்தில் வந்து சொல்கிறான், फिर वो यीशु मसीह के पास आके कहता है, ஆண்டவரே நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க வேண்டும், பரலோகம் போக வேண்டும். वो प्रभु मुझे नित्य जीवन का स्वतंत्र चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், यीशु मसीह ने कहा, நீ இந்த கட்டளை எல்லாம் கைக்கொள். तो मेरे सारे व्यवस्था को पालन करो. அப்பொழுது அவன் சொன்னான், तो उसने कहा, நான் சிறிய வயது முதலே இதெல்லாம் நான் கரெக்டா எல்லாம் செய்கிறேன். कि मैं बचपन से ही इन सारे बातों को पालन करता हूँ. அப்ப இயேசு, உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு.
तो यीशु मसीह कहता है तुम्हारे पास एक कमी घटी है, அதுதான் உனக்கு பரலோகம் போவதற்கு தடையாக இருக்கிறது. वही है जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोकता है। அது என்னவென்றால் वो क्या है बोलने से? அது உன்னுடைய சம்பத்து. वो तुम्हारा संपत्ति है। அதனுடைய சம்பத்து உன்னை பரலோகம் போகாதபடிக்கு அதை பிடித்து வைத்துக் आपका கொண்டிருக்கிறது. जो संपत्ति है आपको स्वर्ग ना जाने से आपको रोक के रखा है। நீ அந்த சம்பத்தை நீ விட்டுவிட வேண்டும். उस संपत्ति को आप छोड़ दो, அப்பொழுது நீ பரலோகத்தில் போகலாம். तब तुम स्वर्ग में जाओगे। அப்ப நீ யார் யாருக்கு இல்லையோ அவர்களுக்கு அந்த சம்பத்து கொடுத்து விடு. जिस जिसके पास नहीं है उसको संपत्ति दे दो। நீ அப்படி கொடுக்கும் பொழுது वैसे आप देते समय நீ பரலோகத்தில் நீ நீ பெரியவனாக இருக்கலாம். तभी तो स्वर्ग में तुम ऊंचे स्थान में रहोगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி சொன்ன உடனே ऐसे बोलते ही ஓகே ஓகே ஆண்டவரே நான் இதெல்லாம் விட்டுறேன் நான் பரலோகத்துக்கு வருகிறேன் என்று அவன் சொல்லவில்லை. और ठीक है प्रभु मैं ये सब छोड़ देता हूँ, हाँ। तुम स्वर्ग में जाओ करके उसने कहा। அஹ், அஹ், அவன் அப்படி சொல்லவில்லை. ऐसा नहीं कहा, அவன் பேசாமல் போய்விட்டான். चुपचाप चला गया। எந்த ஒரு ஆன்சரும் சொல்ல. कोई भी किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। அவன் வரும்போது எப்படி வந்தான்? वो आते समय कैसे आया? நல்ல போதகரே என்று சொல்லி வந்தான். अच्छा देव, अच्छा गुरु। गुरु करके बोलते हुए उसके पास आया। போகும்போது பேசாத போயிட்டான். जाते हुए चुपचाप चला गया। தேங்க்யூ ஆண்டவரே நான் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லவில்லை. धन्यवाद प्रभु मैं जा रहा हूँ करके नहीं बोला। சரி நான் போயிட்டு இதெல்லாம் ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டே வரேன் அப்படின்னு சொல்லவில்லை. ये सब जाके गरीबों को देख के आता हूँ करके नहीं कहा, அவன் பேசாத போயிட்டான். चुपचाप चला गया। அதனால்தான் இயேசு சொன்னார் इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ஒட்டகம் ஊசிக்குள்ள போயிடும், जो ऊंट है वो सुई के अंदर चला अंदर जाएगा. चला जाएगा, ஆனா ஐஸ்வர்யான் பரலோக ராஜ்யத்தில் लेकिन धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाना उतना मुश्किल है। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। என்றால் வேதம் சொல்கிறது उनकी वचन कहता है பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கு. धन का इच्छा है हर एक बुराई का मूल है। அது இயேசுவும் கூட அதை விரும்புவதில்லை. यीशु भी उसे पसंद नहीं करते। அதனால் அது பணம் யார் சேர்த்து வைக்கிறார்களோ அது அவர்களுக்கே தீமை கொண்டு வருகிறது. जो धन का इकट्ठा करके रखते हो उनके लिए बुराई लेके आता है। எங்கள் சபாபதேசக் எக்லேசியன்ஸ் सभापदेशक का पुस्तक நீங்க எக்லேசியன்ஸ் சாப்டர் 5 verses 10 to 13 chapter 5 Ecclesiastes हाँ। जो रुपये से प्रीति chapter रखता है, 5 पांचवा अध्याय 10 से लेकर 13 तक. जो रुपये से प्रीति रखता है हाँ। वह रुपयों से तृप्त ना होगा, हाँ, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है हाँ। लाभ से, हाँ। यह भी व्यर्थ है। हाँ। जब संपत्ति बढ़ती है हाँ। तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, हाँ। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। हाँ, परिश्रम करने वाले थोड़ा खाए हाँ, या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, हाँ, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। हाँ। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बात देखी, हाँ। अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखी हो। हालेलुया. Hallelujah. जो धन किसका हानि होती है? जो उसका मालिक. हालेलुया. हालेलुया। ஐஸ்வர்யமானது जो அதை धन, அதை உடையவர்களுக்கே கேடு உண்டாகும்படி சேகரிக்க வைக்கப்படுகிறது. जो धन है उसके मालिक को ही वो बुराई करती है। किसका बुराई करती है? 13 वचन 5 का 13. मैंने धरती पे एक बड़ी बुरी हाँ। बला हाँ। देखी है, हाँ। अर्थात वह धन हाँ। जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। वो धन अपना ही मालिक का हानि के लिए. हालेलुया. अभी एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया थैला में लेके दिल्ली को रवाना कर रहा है, तो लोगों को पता चलेगा वो क्या उसको छोड़ देगा दिल्ली जाने के लिए? है? उसको पीछे करेगा कि नहीं? इसको कैसा इसको क्या करेंगे? घात करेंगे. घात करके वो मालिक को घात करने से धन किसका हो जाएगा? वो जो भी घात करेगा उसका हो जाएगा. हालेलुया. जो धन इसलिए इकट्ठा किया जाता है, वो जिसका मालिक धन का मालिक है उसी को क्या होगा? उसी को हानिकारक. हालेलुया. यानी जो काम करने वाला 12 वचन पढ़ो.
12 वर्ष। परिश्रम करने वाला परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए चाहे थोड़ा खाए या बहुत, या बहुत, तो भी उसको नींद सुखदाई होती है। हाँ, तो भी उसका नींद सुखदायी होती है। परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण हाँ उसको नींद नहीं आती। हाँ, लेकिन धनी का धन बढ़ने के कारण उसका नींद, पराक्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला अगर 2 ही रोटी खाए या 6 रोटी खाए तो भी क्या है, वो अच्छा खोराक एक साथ नींद लेगा, उसका कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है, उसका कोई गुम नहीं होगा, कोई गुम होने के लिए है भी नहीं कुछ। हालेलुया। जो धनी है उसको धन बढ़ने के कारण, क्या लिखा है, वो धन बढ़ने के कारण उसको क्या नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। अरे कल फलाना पैसा आना है, कल फलाना जहाज आना है, कल फलाना ट्रक आना है, कल फलाना दुकान को माल जाना है, कल उसका धन आना है, इसका धन आना है, तो धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आएगा। हालेलुया। जो परिश्रम करने वाला कम खाए या ज्यादा, उसको नींद कैसा होगा, बहुत आनंद होगा। क्या है, बहुत आनंद। हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह उदाहरण कहता है, लाजर भी दफना गया, ऐसरान भी दफना गया। फिर ऐसरान का, लाजर का आवाज उधर कुछ नहीं आया। लाजर कोई आवाज किया, लाजर था अब्राहम का गोद में। हालेलुया। वो धनवान वहां से आवाज कर रहा है, कहां से, नरक से आवाज कर रहा है। इधर पृथ्वी में धनवान था, वो ऐश्वर्य था, उधर धनवान क्या आवाज कर रहा है। अब पढ़ो लूक रचित सुसमाचार, लूक 16 अध्याय 16 वर्सेस 23। लूक 16। और अधोलोक में हाँ उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई हाँ और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। हाँ, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया मुझ करके पर दया करो, लाजरस को भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा हाँ पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, हाँ क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, 25 पढ़ो। परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ हे पुत्र, हाँ स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है हाँ और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, हाँ। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और हाँ। तू तड़प रहा है। हालेलुया। अभी कौन शांति पा रहा है, जो भूखा था, जो प्यासा था, जो नंगा था, जो सकेत रास्ता पे चलता था, अभी वो क्या किया है, शांति पाया। वो कितना समय के लिए शांति है, वो आनंद काल के लिए शांति पाएगा। हालेलुया। इस पृथ्वी का जीवन वो बहुत सुखमय, जो धनवान, जो यीशु मसीह के पास आया, वो पृथ्वी का 80, 90, 100 साल वो आनंद लेने के लिए वो यीशु मसीह से बिना बोले चुपचाप चला गया। अभी वो उसके लिए क्या बोल रहा है इधर यीशु मसीह, वो तो पहले दुख पाया था, वो अभी शांति पा रहा है। तू तो क्या कर रहा था, सुख भोगी हुआ था। हालेलुया। 24 पढ़ो, 24 वो 24, उसी में 24। तब उसने पुकार के कहा, हाँ हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके हाँ। लाजरस को भेज दे, हाँ। ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर हाँ। मेरी जीभ को ठंडी करे, हाँ। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। 23 और अधोलोक में 6:23। हाँ और अधोलोक में उसने 16:23 6 लूक 6 लूका समाचार 6 अध्याय उसका 24 पढ़ो। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, हाँ क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाँ हाय तुम पर अब तृप्त हो, हाँ। क्योंकि भूखे होंगे। हाँ हाय तुम पर जो अब हंसते हो, हाँ। क्योंकि शोक करोगे और रोओगे।
हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह चेलों को पहले बोला था, जो शोक करने वाला धन्य है। जो शोक करने वाला अभी क्या पा रहा है? शांति पा रहा है। जो भूखे था वो अभी क्या है? वो तृप्त है। उसको पानी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, उसको खाना का जरूरत नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये धनवान है, वहाँ इसको अभी वहां पर पानी का जरूरत पड़ रहा है, वहाँ उद्धार का जरूरत पड़ रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम धन्य है। जो भूखे है, प्यासे है, नंगे है, आप लोग क्या है? धन्य है। तुम शांति पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? शांति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आखिरी एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। याकूब का पत्रिका 5वां अध्याय 1 से लेकर 3। याकूब का पत्रिका 5वां अध्याय, யாக்கோபு எழுதிய லக்னம் 5வது அதிகாரம் 1 முதல் 3 வசனம். 5 யாக்கோபு 5 1 2 3 வசனம். ஐஸ்வர்யவான்களே ஆ கேளுங்கள், ஆ உங்கள் மேல் வரும் நிர்பந்தங்களின் மித்தம் அலறி அழுங்கள். ஆ உங்கள் ஐஸ்வர்யம் அழிந்து உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்து போயின. ஆ உங்கள் பொன்னும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்தது. ஆ அவைகளுள்ள துரு உங்களுக்கு விரோதமாக சாட்சியாய் இருந்து ஆ அக்னியை போல உங்கள் மாம்சத்தை தின்னும். ஆ கடைசி நாட்களிலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்தீர்கள். ஆ இதோ உங்கள் வயல்களை அறுத்த வேலைக்காரருடைய கூலி ஆ உங்களால் அநியாயமாய் பிடிபட்டு ஆ கூக்குரல் இடுகிறது. ஆ அறுத்தவர்களுடைய கூக்குரல் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் செவிகளில் பட்டது. ஆ பூமியிலே நீங்கள் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து ஆ சுகபோகத்தில் உழன்றீர்கள். ஆ கொளுத்தவர்களை அடிக்கும் நாளில் நடக்கிறது போல உங்கள் இருதயங்களை கோசித்தீர்கள். ஆ நீதிமானை நீங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து ஆ கொலை செய்தீர்கள். அவன் உங்களோட எதிர்த்து நிற்கவில்லை. बस बस ए धनवानों 1 2 3 हाँ धनवानों हाँ सुन तो लो, हाँ तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हाँ तुम्हारा धन बिगड़ गया है हाँ और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। हाँ तुम्हारे सोने चांदी को काई लग गई हाँ और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खाई जाएगी। हाँ तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ ये लासर का साथ रहने वाला, साथ नहीं है, लासर का समय में रहने वाला धनवान के लिए यही यीशु मसीह बोल रहा है, धनवान तेरे लिए हाय। हालेलुया। ஐஸ்வர்யவான்களே கேளுங்கள், உங்கள் வரும் நிர்பந்தங்கள் நீங்கள் அலறி அழுங்கள்। यानी आपके ऊपर आने वाला वो दंड है, वो निंदा है, उसके लिए आप क्या करो? रो पड़ो। हालेलुया। इसलिए जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो नंगे हैं, जो क्लेश में है, यीशु मसीह हमें कह रहा है आप धन्य हैं, क्योंकि आप क्या पाएंगे? शांति पाएंगे।